بلاول کا وزیر اعظم سے سیاسی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا مطالبہ. کہتے ہیں کہ سیاست میں تقسیم پیدا ہو چکی، قومی ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہو چکا. گورنر ہاؤس پنجاب میں افطار ڈنر سے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن کو بھی قومی ایشوز پر اتفاق رائے میں حصہ لینا چاہیے. کراچی میں ٹینکر نے ہنستا بستہ خاندان اجاڑ دیا. ملی ہالٹ پر رونگ وے آتے ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا. زخمی حاملہ خاتون نے سڑک پر ہی بچے کو جنم دیا. ننھے مہمان نے دنیا میں آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی بند کر لی. زچہ بچہ اور والد تینوں جان سے گئے. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عبدالقیوم اور زینب اسپتال سے چیک اپ کرا کر آ رہے تھے. پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پھر ٹینکر مافیا کو وارننگ. کہا ڈمپر ٹینکر مافیا کان کھول کر سن لیں، انہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، ان کا جینا حرام کر دوں گا. ڈمپر مافیا کے خلاف عوامی عدالت میں فیصلہ کروں گا. بلوچستان کے ہر تعلیمی ادارے میں قومی ترانہ پڑھانے کا فیصلہ. اسکولوں کالجوں میں قومی پرچم لہرایا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. کہا جن تعلیمی اداروں کے سربراہان احکامات کی پابندی نہیں کروا سکتے وہ دستبردار ہو جائے. ریاست مخالف سرکاری ملازموں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہارڈ کور دہشت گردوں سے کوئی رعایت ہوگی نہ سڑک بند کرنے کی اجازت دی جائے گی. ریاست مخالفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. حکومت مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے، کسی بھی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. بلوچ نوجوانوں کو لا حاصل جنگ میں دھکیلا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب اسپتالوں کی حالت پر پھر برہم. جناح اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اور پرنسپل کو معطل کر دیا. مریم نواز نے اچانک جناح اسپتال کا دورہ کیا. لوگوں نے مریم کو روک کر شکایتوں کا ڈھیر لگا دیا. اسٹور میں موجودگی کے باوجود دوائیں نہ دینے پر مریم نواز کا اظہار برہمی. وزیر اعلیٰ نے ہربنس پورہ فیلڈ اسپتال میں بھی سہولتیں دیکھیں. اسپتال واجبات ادائیگی دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. سرکاری اسپتال میں دستیاب دواؤں کی فہرست لگانے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کا غیر اعلانیہ دورہ کیا. مختلف سڑکوں اور بازاروں کا معائنہ. ستھرا پنجاب کے تحت صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں بحال کر دی. جس کا نام سلمان اکرم راجہ دیں گے صرف وہی ملاقات کر سکے گا. جو بھی بانی پی ٹی آئی سے ملے گا وہ میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. عدالت نے حکم دے دیا. قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے ملاقات کے لیے ٹرائل کورٹ کو درخواست دیں. سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملنے والوں پر ملاقات کے بعد سیاسی گفتگو نہ کرنے کی شرط عائد ہوئی. عدالت نے بات نہ کرنے کا حکم رفقا کی حد تک دیا ہے. کسی بھی شخص کی گفتگو پر تو قلقن نہیں لگ سکتی. اگر کوئی سمجھتا ہے بانی معافی مانگیں گے تو ذہن سے یہ نکال دیں. 26 نومبر کو احتجاج کے 7 مقدمات. انسداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع کر دی. عدالت نے پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کی 4 مقدمات میں گرفتاری روک دی. عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع. ملزم ارمغان امریکی شہریوں سے فراڈ میں بھی ملوث نکلا. ارمغان کے کال سینٹر سے امریکیوں کی معلومات حاصل کی جاتی. معلومات کے ذریعے امریکیوں کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوائی جاتی. ملزم جعل سازی سے ہر مہینے 3 سے 4 کروڑ کما کر کرپٹو میں تبدیل کرا لیتا. ایف آئی اے نے جعل سازی اور حوالہ ہنڈی کا مقدمہ بھی درج کر لیا. ارمغان اپنے دوست مصطفیٰ عامر کے قتل میں گرفتار کیا گیا تھا. پشاور میں پنجاب بینک کی کیش وین لوٹ لی گئی. ہشت نگری میں 4 مسلح افراد نے کیش وین سے 3 کروڑ لوٹے. ملزم لوٹ مار کے بعد گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق کیش وین نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا. مختلف علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے. جلد ملزمان کو پکڑ لیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا 3rd پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کر دی. کہا رمضان پیکج پورے پاکستان بشمول گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے لیے متعارف کرایا گیا. پیسے مستحقین تک شفاف نظام کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کی اس ماڈل کو دیگر حکومتی اسکیموں میں اپنانے کی ہدایت. چینی کی وافر مقدار موجود ہے. ایسی صورتحال نہیں کہ درآمد کی جائے.
वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं बचत बाजारों में चीनी 130 और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपए किलो मिल रही है। रिटेल में चीनी 164 रुपए में दस्तयाब है। किसी ने इससे ऊपर फरोख्त की तो सख्त कार्रवाई होगी। चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होने देंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं शुगर माफिया ने नाजायज मुनाफे से अपनी ईद मीठी और आवाम की फीकी कर दी। चीनी की कीमत और वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ रही हैं। कमिश्नर कराची ने शहर में तहक्कुम सानी हर किस्म के एहतजाज, रैलियों और जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची का कहना है कि 5 लोगों के एक साथ जमा होने पर भी पाबंदी आयद की। कराची में फिर जगह जगह ट्रैफिक जाम, दफातर से घरों को जाने वाले परेशान। ओल्ड सिटी एरिया, पाकिस्तान चौक, आई चुंदरीगढ़ रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें। ट्रैफिक में फंसे बेशतर शहरियों ने सड़क पर रोजा इफ्तार किया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फवारा चौक और अब्दुल्ला हारून रोड पर होने वाले एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाक अफगान ताल्लुकात से मुतालिक इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सादिक खान ने अपने दौरा काबुल पर ब्रीफ किया। अफगान हुकाम ने मुलाकातों और दो तरफा ताउन पर ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने दो तरफा ताल्लुकात के लिए अफगान अबूरी हुकूमत से डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया। ऐवाने सदर में फौजी एजाजात देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने एयर मार्शल शकील गजनफर, एयर मार्शल काजिम हमाद और एयर वाइस मार्शल शकील सफ्तर को हलाल इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। मेजर जनरल सैयद उर रहमान सरवर और मेजर जनरल ताहिर मसूद समेत दीगर को भी हिलाल इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारा किसान बहुत मेहनती और काबिल है। सर्दी गर्मी में दिन रात मेहनत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी ज़राई तहकीकाती काउंसिल में आलू के बीज की तैयारी और एरोपॉन्क्स कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा, बेहतरीन बीज, खाद और मयारी अद्वियात की बरवक्त फराहमी से ज़राई इनकलाब आएगा। वज़ीर आला सिंध का 30 जामियात के 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। मुराद अली शाह का कहना था सिंध हुकूमत डिजिटल तालीम और हुनरमंदी में इनकलाबी इकदाम कर रही है। स्कॉलरशिप्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। इससे समाजी और इक्तिसादी तरक्की को फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत, गूगल और टेक वैली के दरमियान मुआहिदे की तकरीब वज़ीर आला हाउस में हुई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर सिंध हुकूमत का 4 अप्रैल को आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सूबाई तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। कराची के इलाके लियाकताबाद में पीपल्स पार्टी कारकुनों के 2 गिरोह लड़ पड़े। लातों, घूसों, मुक्कों के वार किए। वीडियो वायरल हो गई। पुलिस ने बताया जमीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। एक गिरोह कब्जा कराना चाहता था। हम खुद सुलह करा लेंगे। पार्टी ओहदेदार थाने से उनको साथ ले गए। ईद खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में गहमा गहमी, नए कपड़े, रंग बिरंगी चूड़ियां, कुस्से और झुमकों की दुकानों पर रश लग गया। कराची में फर्शी शलवार की डिमांड। फैसलाबाद में खवातीन मलबूसात, चूड़ियां, पर्स, मेहंदी और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में बच्चों की वालिदैन के साथ शॉपिंग। किसी ने नए कपड़े लिए तो किसी ने मैचिंग जूते पसंद किए। इसराइल ने खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर क़यामत ढा दी। लाइव नशरियात के दौरान मिसाइल अस्पताल पर गिरा। हंगामी शोबा मुकम्मल तबाह। हमले में हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन इस्माइल बैरून समेत 5 अफराद शहीद हो गए। एनी शाहिद ने आलमी बरादरी से सवाल किया, घर, सड़कों और गलियों में बम बरसाए जा रहे हैं। हम लोग अस्पताल में भी महफूज नहीं तो फिर कहाँ जाएं? इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 130 से जायद जख्मी हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 50,000 से बढ़ गई। कतर में भारतीयों की जासूसी की कार्रवाइयां न रुक सकी। कतरी हुकाम ने भारतीय IT इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया।
अमित गुप्ता डेटा चोरी और जासूसी में मुलव्वस पाया गया। IT फर्म के अहदेदार 3 माह से जेर हिरासत है। 2022 में कतर में भारतीय बहरिया के 8 एहलकार गिरफ्तार हुए थे। भारतीयों को इसराइल के लिए जासूसी पर सजाए मौत सुनाई गई थी। ट्रंप इंतजामिया ने 5,30,000 तारकीन वतन की कानूनी हैसियत खत्म कर दी। 24 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क्यूबा, हैटी, निकारागुआ और वेनेजुएला के शहरी निशाना बनेंगे। फैसला कल जारी किए जाने वाले सदारती हुक्मनामे के तहत नाफिज होगा। इमिग्रेशन अमूर पर काम करने वाली तंजीम वेलकम US ने मुतासरा अफराद को मशवरा दिया है वो फौरी तौर पर इमिग्रेशन वकील से रुजू करें ताकि मुल्क में रहने के लिए कोई कानूनी रास्ता तलाश किया जा सके। HPL PSL सीजन 10 के लिए ऑस्ट्रेलियावी ओपनर डेविड वार्नर कराची किंग्स के कप्तान मुकर्रर। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने कहा, डेविड वार्नर को कराची किंग्स फैमिली में बतौर कप्तान खुशामदीद कहते हैं। वार्नर की बतौर लीडर और मैच विनर कारकर्दगी हमारी टीम के विजन से मुताबिकत रखती है। गुज़िश्ता सीजन में शान मसूद की गैर मामूली क़यादत पर तहे दिल से शुक्रगुजार है। खुशी है शान मसूद टीम का एक हिस्सा रहेंगे। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। कराची किंग्स 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ मैच खेलेंगे। PSL 10 का ऑनलाइन सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट मुकम्मल। पेशावर ज़ल्मी ने कॉर्बन बोश की जगह जॉर्ज लिंडे को स्क्वाड में शामिल कर लिया। इस्लामाबाद ने वंडर डेविसन की जगह एलेक्स कैरी को स्क्वाड में मुंतखब किया। कराची किंग्स ने पहले ही इजाफी खिलाड़ियों में लिटन दास को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। मार्क चैंपियन केन विलियमसन और 200 इब्तदाई मैचों में दस्तयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान टीम 5वें T20 के लिए माउंट मॉन्गानुई से वेलिंगटन पहुंच गए। कौमी स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। ग्रीन शर्ट्स और ब्लैक कैप्स बुध को स्काई स्टेडियम में मद्दे मुकाबले आएंगे। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान कीवीज को 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। बड़े खिलाड़ी की छोटी हरकत। हरभजन सिंह के जोफ्रा आर्चर के लिए नस्ली रिमार्क्स पर तनाजा। कमेंट्री के दौरान हरभजन सिंह ने कहा कि लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज भागता है और यहां पर आर्चर का मीटर। सोशल मीडिया सार्फिन ने हरभजन सिंह से माफी का मुतालबा कर दिया। आंखों से महरूम तमीम इकबाल को क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक। बांग्लादेश के साबिक कप्तान को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक तमीम इकबाल ढाका प्रीमियर लीग का मैच खेल रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में तकलीफ हुई। आंखों से महरूम वशनाज ने जिंदगी रोशन कर ली। कोयटा की वशनाज मसनूई जेवरात बनाती और ऑनलाइन फरोख्त करती है। बचपन में वशनाज की बिनाई चली गई लेकिन उसे रंग याद है। वशनाज ने रंगों के खूबसूरत इम्तजाज से मोती पिरोने में महारत हासिल की। वशनाज बताती है डरते डरते काम शुरू किया, अब कारोबार चल पड़ा। रिटायर्ड बूढ़े वालिद का सहारा भी बन गई। और जी तो पाकिस्तान लीग में जारी है इनामात की बरसात। एक बार फिर शो में शरका ने जीते 1.5 करोड़ मालियत के इनामात, जिनमें शामिल हैं 1500 सीसी कार, मोटर बाइक्स, होम अप्लायंसेज और बहुत कुछ। जीत का सफर है जारी इस रमजान। जीतो पाकिस्तान लीग में सिर्फ ARY डिजिटल पर।